अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। In the previous lecture, we have studied the growth theories of international dependence revolution. इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन को थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट सीरीज स्टडी कर सकें अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन we have studied that how developing countries are catch up with the developed countries through dominance and dependence relationship, and due to this dominance and dependence relationship, developing countries are still remained in the state of underdevelopment। और यही डिपेंडेंस डोमिनेंस रिलेशनशिप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो डेवलपिंग स्टेट में ही रहने का बायस बनता है। We have also studied three streams of thought: new colonial dependence, false paradigm model, dualism, dual development thesis, to explain the international dependence revolution in detail. And we have also criticized dualistic development thesis in the previous lecture. Today, we are going to start the next economic growth theory, that is new classical growth theory, also named as Solow and Swan model. New classical growth theory. In particular, represented the contribution to the new classical growth theory and later earned Robert Solow the Nobel Prize in Economics. It differed from the Harrod-Domer growth model by adding a second factor, labor, and introducing a third independent variable, technology, to the growth equation. Basically, जो सोलो ग्रोथ मॉडल है या न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, this model estimated the impact of three independent variables on GDP growth rate. These three independent variables are: first one is labor, means you can say that population growth. Second one is saving growth rate. Saving, obviously, that is the important variable because saving leads to investment, which further leads to capital accumulation. And third one is technological progress. So Solow growth model estimated the impact of these three variables on GDP growth rate. Here you can say that GDP growth rate is a dependent variable, while population growth, saving growth, and technological progress, these three are the independent variables. But how it is different from the Harrod-Domer growth model? अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले क्लासिकल ग्रोथ मॉडल पढ़ा था, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता देता हूँ सो दैट यू कैन हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल एंड सोलो ग्रोथ मॉडल। इन हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल there is a relationship between GDP growth rate and saving and capital output ratio. Basically, Harrod-Domer growth model estimated the impact of saving and capital output ratio on GDP growth rate and found that GDP growth rate is positively affected by the saving rate, while it is inversely affected by the capital output ratio. These were the findings of Harrod-Domer growth model. So it is different from the Solow model in the sense that सेविंग वेरिएबल वहां पे भी था, यहाँ पे भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ या लेबर का कोई वेरिएबल शामिल नहीं था जो कि हमने यहाँ पे शामिल किया है। और तीसरा ये है कि वहां पे कैपिटल आउटपुट रेशो को लिया था, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशो कम कैसे होगी?
इस बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो वो बेसिकली कम होती है टेक्नोलॉजी से। तो फिर वहां पे टेक्नोलॉजी का वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का वेरिएबल यूज किया गया है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल एंड द प्रेजेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सोलो ग्रोथ मॉडल। तो सोलो ग्रोथ मॉडल में एक तो सेविंग वेरिएबल है जो ऑलरेडी हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल ने भी लिया था, और यहाँ पे इन एडिशन में क्या है, लेबर वेरिएबल है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ है, और दूसरा टेक्नोलॉजी। देर आर सम अजम्पशंस ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। ऑब्वियसली जितनी भी हमने ग्रोथ थ्योरी स्टडी की है उनकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस है। सेम वे में देर आर सम इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। फर्स्ट वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। means that what do you mean by diminishing returns to capital? I want to explain this कि जैसे जैसे हम कैपिटल को मजीद इन्वेस्ट करते जाएंगे उसके जो फर्दर रिटर्न्स आएंगे दैट विल बी डिक्लाइन, और यू कैन से दैट मार्जिन रिटर्न्स टू कैपिटल विल बी डिक्लाइन। हर एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल से जो रिटर्न मिलेंगे वो पहले वाले से कम होंगे। सो दिस इज assumption of solo growth model. Second one is constant return to scale. Means that double the input output will be also doubled. जितना हम इनपुट बढ़ाएं आउटपुट भी उतनी ही बढ़ जाए। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हम 20% इनपुट में इजाफा करते हैं, आउटपुट में भी 20% इजाफा हो जाए। जिस रेशो से इनपुट में इजाफा किया जाए उसी रेशो से आउटपुट में इजाफा हो जाए। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो सोलो ग्रोथ मॉडल assumes a constant return to scale and diminishing returns to capital. And third assumption is that exogenous technological progress. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एज ए एक्सोजनस वेरिएबल शामिल किया गया। सो यू हैव टू नो अबाउट द एक्सोजनस वेरिएबल एंड एंडोजनस वेरिएबल। यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोजनस वेरिएबल एंड एंडोजनस वेरिएबल। एक्सोजनस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल whose value is not determined by inside the model. Its value is given and determined by the outside determined from outside the model. इसकी वैल्यू गिवन होती है कांस्टेंट की तरह, मॉडल को सॉल्व करके जो है वो हासिल नहीं की जाती। या आप आसान अल्फाज में कह लें कि इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड एंडोजनस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू जो है वो इनसाइड द मॉडल होती है, मॉडल को सॉल्व करने के बाद निकाली जाती है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट एंडोजनस वेरिएबल आर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो टेक्नोलॉजी को एज ए एक्सोजनस वेरिएबल लिया है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, एज ए एक्सोजनस वेरिएबल शामिल किया है। सो दीज आर द मेजर assumptions ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। Solo growth model implies that economies will conditionally converge to the same level of income, given that they have the same rates of saving, depreciation, labor force growth, and productivity growth. Solo growth model differs from heterodomal growth model in the following respects. It allows for substitution between labor and capital. It assumes that there exist diminishing returns to these inputs, and finally introduces technology in the growth equation. ये सोलो ग्रोथ मॉडल की ये तीन assumptions है मेजर, सॉरी ये तीन पॉइंट्स है जिनकी बेसिस पे ये हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल से डिफरेंट है। मैं आपको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड। हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल ने लेबर का वेरिएबल शामिल नहीं किया था, सोलो ग्रोथ मॉडल ने लेबर का या पॉपुलेशन का वेरिएबल जो है वो शामिल किया है। दूसरा ये इट अलाउज द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, मतलब लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेसमेंट ऑफ लेबर। Diminishing returns to these inputs and introduce technology in the growth equation. उसमें ऑब्वियसली कैपिटल आउटपुट रेशियो को यूज किया था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का वेरिएबल जो है वो यूज किया गया। So this is the general equation of solo growth model. Here output is a function of A stands for technology, K stands for
capital, which comes from saving, and L stands for labor, which comes from the population. So these are the three variables which jointly determine the level of GDP, level of income, level of output. So growth accounting formula is delta Y over Y. As you know, growth is determined by current value minus previous value divided by previous value. Means you can say that current year GDP minus previous year GDP divided by previous year GDP, so that you can get the GDP growth rate. So इसका फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर वाई, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू. ये एक जनरल फार्मूला मैंने बोला है. इस तरीके से किसी भी चीज का हम ग्रोथ रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डेल्टा वाई ओवर वाई इज जीडीपी ग्रोथ रेट, डेल्टा ए ओवर ए इज टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट which is exogenous, as you can see. Delta k over k is saving growth rate, and delta L over L is population growth rate. So Solow growth model estimated the impact of saving growth, population growth, and technological progress on GDP growth rate. So here you can see that on the right side of equal sign, there are three independent variables: technological progress, saving growth, population growth. And on the left hand side of equal sign, there is a GDP growth rate. So GDP growth rate is jointly determined by, or you can say that is jointly determined with the help of technological progress and saving rate and population growth rate by Solow growth model. सोलो ग्रोथ मॉडल ने इन तीन वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट पे चेक किया. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन फ्रीली आस्क. Solow growth model empirically estimate the impact of increase in saving rate, population growth, and technological progress on economic growth. यहां तक क्लियर है. दिस इज द बेसिक थीम ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल. सोलो ग्रोथ मॉडल ने क्या किया है? This model estimated the impact of increase in saving, population growth, technological progress on GDP growth rate, on economic growth rate. And found that, obviously हम इसकी फाइंडिंग जो है वो तीनों वेरिएबल्स की अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि सेविंग का क्या इम्पैक्ट होता है, पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, और जो है वो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है जीडीपी ग्रोथ रेट पे. These are the findings of Solow growth model. Solow growth model temporarily increase the per capital capital over labor, per capita output as well. According to the Solow growth model, saving leads to increase in the GDP growth rate. But this increase in GDP growth rate is temporarily. Economy gets back to its previous equilibrium in the long run. Basically, सोलो ग्रोथ मॉडल के मुताबिक सेविंग के बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होता है, लेकिन ये जो इजाफा है ये टेम्पररी है, ये शॉर्ट रन में इजाफा है. इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी लॉन्ग रन के लिए, और लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो पुराना जीडीपी ग्रोथ रेट लेवल उसी पे आ जाएगी, पुराने इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सेविंग जो है दैट लीड्स टू इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द शॉर्ट रन पीरियड, एंड दिस ग्रोथ विल नो मोर बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम. कंसिस्टेंट नहीं रह सकेगी. सेकेंडली, population growth rate adversely affect the GDP growth rate. इससे पर कैपिटा इनकम में इजाफा नहीं होगा.
क्योंकि पर कैपिटा इनकम में इजाफा होने के लिए जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी फास्टर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा, आप चेंजेस कर लीजिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एडवर्सली इफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट बाय द सोलो ग्रोथ मॉडल। इकोनॉमी जो है वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे चल जाएगी, इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ से। एंड थर्ड वेरिएबल इज टेक्नोलॉजी। According to Solow and Swan model, technology is the only variable which can increase the GDP growth rate for long-term period, which can cause increase in GDP growth rate for consistent, for sustained period. प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा, और ये जीडीपी ग्रोथ रेट में जो इजाफा हुआ है ये लॉन्ग रन के लिए होगा। परसिस्टेंट इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूँ सोलो स्वान की फाइंडिंग्स को। सोलो ग्रोथ मॉडल एस्टिमेटेड द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग, population growth rate, saving growth rate, and technological progress on GDP growth rate, and found that saving leads to increase in GDP growth rate, but this increase in GDP growth rate is temporary. Economy gets back to its previous equilibrium in the long run. अब ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो इस जीडीपी ग्रोथ रेट में जो इंक्रीज है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी लॉन्ग रन के लिए। Secondly, population growth rate adversely affect the GDP growth rate according to Solow and Swan model. कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में इजाफा होता है तो उससे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। Thirdly, technology leads to increase in the GDP growth rate, and this increase in GDP growth rate is persistent over time. इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाएगी थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस by increase in the productivity. So these are the findings of Solow and Swan model. कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी ये डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कन्वर्जेंस क्या होती है और डाइवर्जेंस क्या होती है। कन्वर्जेंस इज दैट व्हेन पुअर कंट्रीज ग्रोज फास्टर देन द रिच वंस। पुअर कंट्रीज ग्रोज फास्टर देन द रिच वंस। इससे क्या होगा, इनका इनकम गैप कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कन्वर्जेंस। एंड इफ rich countries rich country grow faster than the poor one, then this is divergence, क्योंकि इससे जो है इनकम का जो डिफरेंस है मजीद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स के कन्वर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। क्रिटिसिज्म सोलो ग्रोथ मॉडल पे आपने करना है। आई डोंट थिंक सो कि आप कर सकेंगे। हाउएवर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम उनकी assumptions पे क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे assumption सी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। देख के कैपिटल हम जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे उनके रिटर्न्स जो है वो डिक्लाइन होते जाएंगे। करंट सिनेरियो में देखें, डेवलप कंट्रीज जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उनके रिटर्न्स तो बढ़ते जा रहे हैं। So the condition is very different from this assumption, or you can say that this is very unrealistic assumption. Second is constant return to scale. Maybe constant return to scale और डेवलपिंग कंट्री में हो, लेकिन इस टाइम डेवलप कंट्रीज में चाइना को देखें, जापान को देखें, अमेरिका को देखें, तो वहां पे तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की बजाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। वो जितने इनपुट बढ़ाते हैं आउटपुट उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो दिस assumption इज आल्सो अनरियलिस्टिक इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। और इसके अलावा एक और assumption थी एक्सोजनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस।
सोलो ग्रोथ मॉडल ये तो जरूर कहता है कि परसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी उसको उसने एज ए एक्सोजनस वेरिएबल शामिल किया है, जबकि ये एंडोजनस वेरिएबल है। ये कहाँ से आएगी, ये इनसाइड द मॉडल ये बताने की जरूरत है, जो कि इसने नहीं बताया। सो दीज आर द सम क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑन द सोलो ग्रोथ मॉडल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।